ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं भैया से, जिन्होंने अभी जस्ट एमटेक कंप्लीट किया आईआईटी बॉम्बे से। सो मैं जानूंगा कि आपकी स्टोरी कैसी रही, मतलब आईआईटी बॉम्बे की। इससे पहले थोड़ा बहुत कुछ बताएं अपने बारे में। पहले तो तुम थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाओ भाई। तो ठीक है। विनय ने मुझे बोला था कि थोड़ा इंटरव्यू इन द सेंस कि थोड़ा डिस्कशन करना है व्हाट अबाउट आईआईटी बॉम्बे एमटेक और आफ्टर दैट। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि व्हाट वाज बिफोर एमटेक। सो आई एम अ 2020 पास आउट। आई डिड माई BTech from Walchand College of Engineering in Mechanical Engineering. Then I joined Eaton India Innovation Center. I was there as an associate engineer. My role was in one of the team which was related to direct material productivity. I won't go in much details about that, but it was a good job. But as I always wanted to pursue some good degree from a good college, obviously IITs and IIScs, or my inclination was more towards research and development and technology. Then I gave GATE for the first time. I couldn't get good score because I was like doing the job and preparing parallelly. For the second time when I gave GATE, then also I was having a job. I think there is too much wind, so I will hold it here. So what happened? So I was having my the job was going well, but as I said, I wanted to do MTech, so I gave GATE another time. Then before joining MTech, I got opportunity from NITI College, which is now IIM Mumbai. So I joined there for 1 month, but I personally felt that is not the thing for me. Because that's a management side, and people are more oriented towards money, you can say, and they have their own ambitions which are not directly I didn't appeal me much. So then eventually I got offer in Triple M, then in IIT Mumbai. Then it got upgraded. Then finally the final offer that I had was in thermal. So I joined IIT Bombay MTech Thermal and Fluid Engineering in 2022. So yes, that was the background, I think. तो मतलब एक सवाल रहता है बच्चों का, जैसे जब उनका गेट में अच्छा रैंक आ जाता है तो कि एमटेक करें कि पीएसयू में जाएं, तो मतलब किसको एमटेक में आना चाहिए और किसको पीएसयू में जाना चाहिए? मतलब जैसे आपने 2 साल में क्या एक्सपीरियंस किया कि मतलब कौन से टाइप के स्टूडेंट को एमटेक करना चाहिए और किसको पीएसयू में जाना चाहिए? बेसिक डाउट होता है। अभी जैसे गेट का रैंक आया है तो बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा। So Vinay is talking about whether to join MTech or whether to pursue MTech or join PSU. Yeah, this is a very highly debated question कि बहुत हमने भी ज्वाइन करने से पहले देखा है, हमें भी PSUs के ऑफर थे, जैसे कि NTPC में हुआ था, फिर NMDC में हुआ था सिलेक्शन. तो I also thought कि what should I do? This question comes mainly because everyone thinks what after MTech, what salary I will get, and what's in hand money I will be earning, what will be my status, and how I'll be valued in the society. So all these factors are external factors, that's what I believe. लोग सवाल करेंगे या फिर तुम्हें परसेप्शन क्या है, ये एक सवाल होता है कि पीएसयू ज्वाइन करने का अगर तुम्हें बेनिफिट देखोगे तो स्टेबल जॉब है डेफिनेटली. मैंने सुना था कि काम कम रहता है, लेकिन अभी मेरा कुछ दोस्तों से बात हो रहा है एनटीपीसी में जो काम कर रहे हैं वो बोले कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, काम कम ऐसा नहीं, डेली जाना पड़ता है हमें भी, ऐसा नहीं है कि बैठो और करो. तो दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्शन दैट you won't have any work, you will have to do some good work. So काम तो करना पड़ेगा. काम करना पड़ेगा, किधर भी जाओ काम करो, और काम करने में ही खुशी है, ये बात जान लो. The best thing, you will feel good when you will be working well, then rest of the things will fall into the right place after that. So ये फिर I will continue answering this, or should I do you have another question? जो भी मतलब बता you can. So MTech versus PSU, I don't have experience of PSU, but I have MTech experience in IIT Bombay and it's awesome. So 2 साल मेरे कैसे बीत गए, आज this is my last day, और मुझे लग रहा है कि मैं कल MTech ज्वाइन किया हूँ, और कल ही मैं हॉस्टल की क्यू के लिए खड़ा था कि मुझे कौन सा रूम मिलेगा. वहाँ से पूरा रैंडमनेस शुरू हुआ था लाइफ में कि कौन रूम पार्टनर होगा, कैसे कोर्सेज होंगे, क्या अनसर्टनिटीज़ होगी. लेकिन उन सबको एक पॉजिटिव तरीके से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार नया है कुछ, तो आईआईटी बॉम्बे में आ रहे हैं तो कुछ तो बढ़िया ही मिलेगा. और सारी चीज़ें प्री एजम्पशन करके आने में भी बहुत गलती हो जाती है कि प्रिजुडाइज रहने में कि आईआईटी बॉम्बे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसा भी नहीं है.
यहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं, प्रोफेसर सिखाते हैं, वही चलता है, वही फॉलो करना है हमें कि एग्ज़ाम है रहती है। बस एक बोलते हैं, सब बोलते हैं कि IIT बॉम्बे इज़ ज्वाइनिंग IIT बॉम्बे इज़ अ बिग रोलर कोस्टर, बट एंड इट डेफिनेटली इज़। यू विल हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ पेन एज वेल एज जॉय, यू विल हैव गुड फ्रेंड्स, यू विल बी इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ कमिटीज़। वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, यू नीड टू बी काम, यू नीड टू बी हार्श समटाइम्स। सो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। IIT बॉम्बे इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म विच गिव्स अ बिग प्लेटफॉर्म और अ स्टेज टू ग्रो यू एज अ इंडिविजुअल। और ऐसा बोल सकते हो कि वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ले सकते हो। तो यही है। तो IIT बॉम्बे का एक्सपीरियंस मेरा बताते जाऊंगा तो बताते ही रहूँगा, लेकिन तो हाँ जैसे बोलो। लोग पूछते हैं एकेडमिक के बारे में कि मतलब अगर कोई बीटेक कहीं से करके आ रहा है नॉर्मल कॉलेज से, तो वो सोचता है कि एकेडमिक IIT का कैसा होगा, मेरे से हैंडल होगा कि नहीं। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या था कि एकेडमिक मतलब IIT बॉम्बे का कितना डिफिकल्ट होता है या मैनेजेबल होता है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, सिंस देखो यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट बिकॉज यू हैव गॉट सिलेक्टेड, you have cleared the gate and you are in IIT Bombay, that means you are selected, so you are deserving first of all. So कैसा होगा क्या होगा ये तब सवाल आता है when you are not putting good efforts. तो यहाँ पे आके डिफरेंस यही में पड़ जाता है कि तुम एफर्ट्स कितना डाल रहे हो, तुम कितना सीरियसली ले रहे हो चीज़ों को, और टाइम बीइंग के लिए सीरियसली लेना है, ऐसा नहीं कि टेंशन लेना है उसका। तुम्हें ये एग्ज़ाम है, रिस्पेक्ट द एग्जामिनेशन, रिस्पेक्ट द प्रोफेसर, उसका पढ़ाई करो और आंसर क्वेश्चन पेपर लिखो, वही है, सिंपल बात है यार। कौन से भी कॉलेज से हो थोड़ा डिफिकल्टी समझ में आ जाएगा, मे बी लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, मे बी थोड़ा लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, यही तो बिल्ड करने आ रहे हो ना यहाँ। ये ऐसा मत सोचना कि वहाँ जाके मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। जाके तो देखो, करके तो देखो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी अच्छा किया। तो मतलब अगला सवाल होता है जब कोई आ जाता है उसका कि मतलब प्लेसमेंट कैसा होगा, मतलब अगर मैं IIT बॉम्बे में जा रहा हूँ PSU छोड़ के या फिर 2 साल में दे रहा हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, मतलब प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का, स्पेशली अगर हम बात करें मैकेनिकल और मैकेनिकल में एमटेक की। ओके, सो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन कि यहाँ के आने से पहले ही लोग प्लेसमेंट का सोचते हैं। जैसे कि विनय ने मुझे पहली बार पूछा था कि भैया प्लेसमेंट कैसा है IIT बॉम्बे का, डे 1 पे पूछा मेरे भी जो आने वाले जूनियर मतलब एग्जैक्टली मैं ये बोल नहीं रहा कि ये पूछना गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जो माइंडसेट लेके आते हैं वो थोड़ा सा गलत है। आए हो यार, IIT बॉम्बे आए हो, पहला मंथ है, एंजॉय करो, देखो चीज़ें क्या हो रही है। तुम्हारे लिए सब सजा धजा के रखा है इधर, बस तुम्हें देखना है, एक्सप्लोर करना है। तो प्लेसमेंट के बारे में बोलूँ तो मैं देखो अभी मैं थोड़ा स्टैट्स इतना बता नहीं सकता क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, अभी वो रिवील होंगे। IIT बॉम्बे के वेबसाइट पे आपको एग्जैक्ट स्टैट्स मिल जाएंगे कि कौन से सेक्टर में कितने हुए। मैकेनिकल का मैं बोलूँ तो 2024 में मतलब 2023 दिसंबर में हमारा प्लेसमेंट का सीज़न था, यानी कि 3rd सेम के एंड में। तो पहला इमेज ऐसा था कि इतने कंपनीज नहीं आ रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ द रिसेशन वी आर हैविंग इन रिसेशन, ऐसा बोल सकते हो कि वो एक इमेज आ गया था, रिसेशन का बादल छा रहे थे। तो पहले तो ऐसा सीन था कि डे 1 तक इतने ज़्यादा शॉर्टलिस्ट थे ही नहीं, मतलब मेरे तो बस एक शॉर्टलिस्ट था। वैसे तो 10 कंपनीज आने वाली थी, फॉर एग्जांपल यार जैसे कि बजाज थी, फिर गोदरेज, रिलायंस, फिर माइक्रॉन, उसके बाद और कौन सी कंपनी थी, सायंट करके थी, और मुझे वेरॉक करके थी, और कौन सी कंपनी का नाम मैं बोलूँ, ये कंपनी कोर कंपनीज मैकेनिकल में थी। 10 कंपनीज थे अप्रॉक्सीमेटली मान लो आने वाली है, लेकिन 10 में से 5 के लिए थर्मल वाले सुटेबल रोल्स थे, ऐसा बोल सकते हो। मैं डिटेल्स में इसलिए, वो तो विनय शायद बाद में सबका डिटेल्स लेके एक वीडियो खुद से बनाएगा और दिखाएगा, लेकिन सैलरी के वाइज लोगे तो एक तो प्राइवेट जॉब में जाओगे, इसके बाद ये तो क्लियर है। तो प्राइवेट सेक्टर का लाइफ ऐसा होता है कि तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा, और तुम्हारा एक स्टार्ट बहुत सबका अलग अलग तरीके से हो सकता है। तुम एक बार वो फील्ड में चले गए तो फील्ड में चले जाते हो, जैसे कि मान लो कि कोई डिज़ाइन में चला गया हो, कोई थर्मल में मतलब रेफ्रिजरेशन में चला गया हो, ऐसा फील्ड चूज़ होता है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि तो और CTC का रेंज भी वेरी होता है, जैसे कि 8 लाख भी होता है और 30 लाख भी होता है मैकेनिकल में। मैकेनिकल कोर जॉब्स में बोल रहा हूँ मैं। तो वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड रहता है,
और तुम कितना, तुम्हारे हाथ में नहीं रहता, तुम्हारे हाथ में रहता है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड योर, तो आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपने पूरा मेहनत किया हो, और फिर आपका लक एक फैक्टर होता है, जो एक बोल सकते हो थोड़ा फैक्टर होता है जो उस मोमेंट में काम कर जाता है, तो सारी चीज़ें टिक रहती है तो वो लक बराबर काम करता है। तो मतलब प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में कुछ मतलब बता सकते हैं तो अच्छा, मतलब स्टैट्स बारे में जानना है तो लाइक एज फार एज आई नो द लोवेस्ट सैलरी CTC वाज अराउंड 8.5, मैक्सिमम इट वेंट टू अराउंड 27.5, और इट एवरेज यू कैन से इज अराउंड 12 LP है। हाँ। तो 27 मतलब किसका था? 27 की अप्रॉक्स जो CTC था हाँ किसका था? ये क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं प्लेस हो गया हूँ जो CTC मतलब IIT बॉम्बे का मैकेनिकल में हाईएस्ट CTC था वो भैया का ही था, रुद्रा भैया का। तो मतलब और एक था मेरा, हाँ, एक हमारे लोग बैच और में हैं। से थर्मल में से 2 सर लोग हैं, हो गए। रिदम सर हैं, 2 लोग का था। तो बाकी सबका अच्छा है, बहुत लोग का है CTC अच्छा, मतलब 18, 20, 15, 14 है, बहुत लोग का है। तो अच्छा हाँ, मतलब अपॉर्चुनिटी वाइज देखो जाएगा तो 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया रहेंगी, बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं कि कम है, लेकिन वो भी अच्छी है, टेक्निकल रोल्स है। तुम उसका एवरेज CTC जानना ही है तो वो अराउंड वो बॉल पार्क नंबर बोलोगे तो 12 to 14 LPA CTC रहेगा, तो ऐसा है। तो मतलब जितना मैंने अपने सीनियर्स का देखा कि मतलब प्लेसमेंट हो जाता है अगर आप मतलब मेहनत करते हो और सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करते हो प्लेसमेंट के लिए, तो मतलब एट द एंड नहीं देखो, यहाँ पे आके तुम बस प्लेसमेंट का सोचोगे तो तुम तुम्हारे मन के खिलाफ होगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, हाँ। और तुम्हारे मन के जैसा हुआ तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। इससे अच्छा है कि यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो, या फिर अगर तुम एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड हो देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू गुड रिसर्च वर्क। प्रॉफ सारे अच्छे हैं, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप कोई भी प्रॉफ को आके मिलोगे तो उन्होंने बहुत कुछ अपनी फील्ड में करके रखा है। यहाँ पे उनके कई लोगों के बुक्स है, कई लोगों के पेटेंट्स है उन्होंने, जैसे कि मेरे प्रोफेसर है, प्रोफेसर MV राणे, ही इज़ इनटू डेवलप इन हीट पंप लैब जो है हमारा, तो ही हैज़ मोर देन 30 पेटेंट्स ग्रांटेड। तो हाँ यार, उनके अंडर काम करने में बहुत सीखोगे, लेकिन उतना प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उनका काम करने का, उनका स्टाइल अलग रहता है, उनसे मैच करना है तो तुम्हें खुद को एडजस्ट करना होगा, खुद का फ्लेक्सिबल करना होगा। तो अगर ये सब कर सकते हो तो आओ। मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा एकेडमिक लाइफ में, 2 साल में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहेगा, लेकिन सब लोग दोस्त लोग रहते हैं, हॉस्टल लाइफ रहता है, उसके अपोजिट रहता है, वो पूरा रिलैक्स कर देता है, तो स्ट्रेन होता रहता है। और क्या बोलूं। रिसर्च मतलब अगर रिसर्च में 2 लाइन की, रिसर्च कैसा है यहाँ का? मतलब अगर कोई रिसर्च में इंटरेस्टेड बंदा है, अगर वो आना चाहता है IIT बॉम्बे तो उसको। हाँ, तो रिसर्च, अबाउट रिसर्च एज तो आपने अभी न्यूज़ देखा ही होगा कि IIT बॉम्बे इज़ द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज पर द QS वर्ल्ड रैंकिंग, एंड इट्स ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग इज़ 118। हाँ। तो इट इज़ क्लियर दैट द रिसर्च इज़ एक्सट्रीमली गुड हियर। अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से IIC का रिसर्च थोड़ा सा इससे अच्छा रहेगा, अगर बहुत ही आप ओरिएंटेड हो, लेकिन IIT बॉम्बे का ओवरऑल एक्सपोजर, अगर आप चाहते हो कि सब करना है तो IIT बॉम्बे ज्वाइन करो, आपको IIC मिल रहा है, और बस आपको रिसर्च में जाना है आगे तो IIC वुड बी बेटर ऑप्शन। यही है। तो रिसर्च में जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी प्रोफेसर विल भी आपका, बोलते भगवान बन जाएगा वो, तो उसके फील्ड में जाओगे, आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो टॉपिक होगा थीसिस का 1 साल जिसके ऊपर काम करोगे, वो बहुत चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपका मैच हो गया, वाइब मैच हो गया, तो आप एंड में बहुत अच्छा करोगे, आप मोर देन सेटिस्फाइड रहोगे। प्लेसमेंट तो एक बात हो गया छोटा, ये जो आप करोगे दैट विल बी ऐड सम वैल्यू, और ये आप छोटी सी एक ब्रिक डाल दोगे, वो जो नॉलेज का पिरामिड इतने सालों से बन रहा है उसमें एक थोड़ा सा भी हमारा कंट्रीब्यूशन बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो अगला सवाल ये है कि मतलब जो अभी तैयारी कर रहे हैं गेट वगैरह की, वो मतलब अगर उनका रैंक अच्छा नहीं आया, बाई चांस अभी रैंक अच्छा नहीं है, तो मतलब वो PSU के बारे में सोच रहे होंगे कि यार मुझे नहीं मिलेगा, तो मतलब अगर वो मतलब उनके लिए क्या कहेंगे, या नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे, या फिर अगर उनको मिल रहा है MTech, तो मतलब ऐसा कुछ जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में, मतलब जो कर रहे हैं, जो आने वाले यहाँ पे हैं। देखो, ये तो ट्रांजिशन फेज रहता है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऐसा मैसेज है कि आपका बस मेन टारगेट है कि गेट क्रैक करना है, अच्छा रैंक लाना है। नहीं आया क्या करेगा, ये सब बातें बाद में है, और स्ट्रेस मत लो एग्ज़ाम का।
लेकिन प्रिपेयर करते रहो, ऐसा ही मैं बोलूँगा। स्ट्रेस लेने से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाता है। वो मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। वैसे मैं तो वही है कि अच्छे से अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो करना, सब लोग बताते ही रहते हैं और हो जाता है। आप परसिस्टेंस रहोगे, आपको फेथ रहोगे खुद रखे, अगर आपके ऊपर खुद को फेथ है, भरोसा है, तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा ज़्यादा कंसोलेशन का मत सोचो कि यार कोई तो आके मुझे बताए कि मेरा हो जाएगा। खुद को ही करना है और कर दोगे, मतलब खुद पे भरोसा रखना है पहले। हाँ। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मतलब स्टडी के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या क्या होती है, मतलब अगर वो कुछ लोगों को मोटिवेट कर सकती है कि IIT बॉम्बे में क्या क्या होता है मतलब? तो IIT बॉम्बे विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ वैराइटीज ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि स्पोर्ट्स में हो गया, सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छे अच्छे यहाँ पे 7 बैडमिंटन कोर्ट्स है, बड़ा सा कोर्ट वो जो है बैडमिंटन का, टेनिस के 6 कोर्ट्स है। उसके बाद बोलोगे तो 3 बास्केटबॉल के तो इंडोर आउटडोर कोर्ट्स है, क्रिकेट के इंडोर आउटडोर पिचेस है, बड़ा सा हमारा ग्राउंड है, जिमखाना का ग्राउंड है, हॉस्टल के जिम रहते हैं, बड़ा जिम रहता है, स्विमिंग है, ओलंपिक साइज़ का जो स्विमिंग पूल रहता है वो स्विमिंग है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल आई मीन। तो ये है फैसिलिटीज़। और स्विमिंग की फैसिलिटी जैसे कि अलग अलग तरीके के गेम है यहाँ पे, स्क्वॉश है, उसके बाद योगा का रहता है, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो कर सकते हो। कल्चरल्स में है, कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं बजेगा ऐसा नहीं। हर हमारे हॉस्टल का बैंड रहता है। आपने छिछोरे मूवी तो देखी ही होगी, एग्जैक्ट हम ये देखते हैं छिछोरे मूवी जो में जो प्लेट में खाना खाते हैं वो प्लेट में हम खाना खाते हैं। वही मूवी यहीं पे शूट हुआ है। हाँ, वो मूवी यहीं पे शूट, वही हमारे लिए ये प्राउड मोमेंट है यार। ये लाइफ हम जी पा रहे हैं, ऐसा लाइफ कहीं पे आपको नहीं मिलेगा एक्सप्लोर करने को। ये तो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है। अभी पता नहीं ये मैं कॉर्पोरेट लाइफ में चला जाऊंगा, पैसे कमा लूँगा, लेकिन मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ का, और आपको इतना कम पैसे में इतना अच्छा फैसिलिटीज़ कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ये आपने, लेकिन ये पैसे का नहीं है, आपने कमाया हुआ है, ये आपका एफर्ट्स है, ये आपके स्वेट की वजह से आपको मिला है ये। तो यही बोलूँगा मैं। आखिरी सवाल ये कि कुछ इंस्पायरिंग, कुछ इंस्पिरेशन के लिए जो आने वाले बच्चे उनके लिए कुछ 2 लाइन वर्ड्स। तो यार इंस्पायर तो मैं IIT बॉम्बे से ही हुआ हूँ, ऐसा ही कि क्या याद करो, हाँ एक इवेंट था इजहार करके IIT बॉम्बे वाणी क्लब का, बहुत पसंद आया था मुझे। उसमें से एक आपको एक कविता सुनाता हूँ मैं कि आफ्ताब एक शब्द आता है, आफ्ताब का मतलब होता है सूरज। तो शरा ऐसा है कि ज़माना मेरी नींद उड़ा देगा, मेरे ख्वाब नहीं। ज़माना मेरी नींद उड़ा देगा, मेरे ख्वाब नहीं। हवाएं चिराग बुझाती है, आफ्ताब नहीं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए अभी कुछ बोल दिया। नहीं अच्छा, एक नंबर है, बढ़िया है। ठीक है। तो आई थिंक वी आर कंक्लूडिंग। थैंक्स अ लॉट टू विनय एंड सुमित फॉर कैप्चरिंग दिस मोमेंट। पीछे से सब कुछ कर रहा है। सो इस वीडियो के लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, रुद्रा भैया को। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड अगर इससे रिलेटेड वीडियो आपको और चाहिए तो अदर डिपार्टमेंट, अदर डिसिप्लिन से, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।